This meeting is being recorded. So guys, today we have the practice questions for the outer join. So this will be the right outer join, left outer join, and then the full outer join. Apart from this outer join, I have just picked one more question for the cross join. Okay, so these three kinds of join we will see, and one more disclaimer, today this session will be around 1 hour only, so I'll try to finish it before 9:15. Okay. So I want you guys to participate. I don't have much questions, just 5-6 questions would be there, but I want you guys to have your full focus here. Okay, so let's get started now. Okay, so the first problem says, so I hope already you would be aware about the different kinds of outer joint. So let me just remind you once again. So different kinds of outer joints we have in SQL are the left outer joint, the right outer joint, and then full outer joint. So what I mean to say, right outer join means if suppose there are two tables A and B. So the meaning of putting right outer join means all the records within table B that is present on the right side plus the records which are common to the two tables. Okay, that means if you are from the mathematical background, so you would be aware the union, the set concept in the mathematics. So it's the same thing, the intersection of the two elements, the two sets. Basically here the sets are your table and the remaining amount of the remaining set of the other elements, that means from the table B. So that's your right outer join. Then the opposite of right outer join is left outer join, and combination of right and left is outer join, full outer join. Okay, so that's about the outer join. So you will see some differences going forward with the practice questions. Okay, so let's take first questions for today. So I see only 3 people has joined, but it's okay. So the first problem says, write a SQL query to make a report with the customer. Let me share you this document so that you can have it open parallelly in your machine also. Okay. So the first problem says, and I hope yesterday whatever the practice questions I have shared, so you would have gone through it, and I'm assuming like you have already SQL installed in your machine and you are doing practice for those problems. So I'm not asking that part. Okay, so let's start now. Write a SQL query, SQL statement to make a report with customer name. Okay, customer name, city, order date, purchase amount. ये चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है फॉर दोज कस्टमर्स ऑन द लिस्ट हु मस्ट हैव अ ग्रेड एंड प्लेस्ड ऑन और and placed one or more orders, or which orders have been placed by the customer who is neither in the list nor have a grade. So देखो पहले समझने की कोशिश करो, ये कॉलम्स तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बट कंडीशन क्या है, फॉर ओनली दोज कस्टमर्स ऑन द लिस्ट who have a grade and placed one or more order on which or which order have been placed by the customer who is neither in the list nor have the grade. So overall आप लोग क्या निकालना है, उन कस्टमर्स के लिए निकालना है जिनके पास ग्रेड हो, मस्ट हैव अ ग्रेड एंड प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर. सो पहला कंडीशन ये है जिनके पास ग्रेड हो, ठीक है. बेसिकली इन द टेबल इफ यू विल सी, हियर यू विल सी वन कॉलम कॉल्ड ग्रेड कॉलम इन द कस्टमर. सो आप लोगों को ये डिटेल्स, ये रिकॉर्ड्स तो निकालने हैं. कौन से रिकॉर्ड्स? ये रिकॉर्ड, कस्टमर नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर, परचेज अमाउंट एंड दिस थिंग. द कंडीशन सेज फॉर ओनली दोज कस्टमर्स ऑन द लिस्ट हु मस्ट हैव अ ग्रेड एंड प्लेस वन और मोर ऑर्डर, ठीक है, जिन्होंने ऑर्डर एटलीस्ट प्लेस किया हो, एक या एक से ज्यादा है, और विच ऑर्डर हैव बीन प्लेस्ड बाय कस्टमर हु इज नीदर इन द लिस्ट नॉर हैव अ ग्रेड, ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन ये कहता है और विच ऑर्डर हैव बीन प्लेस्ड बाय द कस्टमर order have been placed by the customer who is neither in the list nor have a grade, ठीक है. तो ये दूसरा कंडीशन है. कहने का मतलब ये है, पहला कंडीशन तो ये कहता है कि कस्टमर के पास ग्रेड होना चाहिए, ठीक है. दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कस्टमर के पास ग्रेड भी ना हो, नीदर इन द लिस्ट नॉर हैव ए ग्रेड. नीदर इन द लिस्ट का क्या मतलब हो गया कि जो दोनों टेबल में कॉमन नहीं है उनको भी बताना है, ठीक है. जो कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया है उनके भी डिटेल्स निकालने हैं, ठीक है. और उनके पास ग्रेड नहीं है तो भी उनका डिटेल निकालना है. कुल मिला के आपको सारे के सारे कस्टमर्स के डिटेल निकालने हैं along with their order number, order date and purchase amount.
Okay, so try it doing. It will be done with some outer joint. Just figure out which kind of outer joint you have to put it. I'll give you the just 2 minutes. It's a very simple problem. And let me show you the table also. It's the same table, whatever we were discussing yesterday, the customer, salesman, and order table. For this query, we have just two tables, customer table and order tables. Okay. And you have to figure out these details. The only thing which you have to figure out here is the condition. So basically condition पे focus करो. The condition says customer should be in the list and have placed one or more orders. और second condition क्या कह रहा है? Have placed by the customer who is neither in the list nor have the grade. Okay, so use your brain and figure out which kind of join you can put it. So basically we have two table, customer table and orders table. From the customer table, you have to figure out customer name, city, order number, not order number, only customer name and city. And from the other table, orders table, you have to figure out order number, order date and purchase amount. Okay. And the condition says all the customers should be in list and that should not also be in the list. So the second condition says placed by the customer who is neither in the list nor have a grade. Okay, who is neither in the list nor have a grade. Nor in the grade का मतलब समझ रहे हो? पहले समझ लगा तुम. See here in the grade column, if you will see some of the rows, some of the customer don't have the value. यहाँ पे वो null है. समझ आ रहा है? यहाँ पे वो null है. तो आपको इनको भी find out करना है जिनके पास grade नहीं है, जो null है जिनका grade. Okay. Okay, so your time got over now. So let me just focus on the screen. So basically, which kind of join we should play here? So you have to find out all the details basically. So if you will closely look into the condition, it says the grade placed and one more. See here, those customers on the list who must have a grade and placed one or more orders. So first condition is for all the customers who has placed some order for some purchasing request and they have the grade also. And second condition says or which orders have been placed by the customer who is neither in the list nor have a grade. उन कस्टमर का भी डिटेल आपको निकालना है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस भी किया हो, have been placed by the customer who is neither in the list nor have a grade, जिनके पास ग्रेड नहीं हो और लिस्ट में भी ना हो. लिस्ट में ना होने का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने ऑर्डर ना प्लेस किया हो. ठीक है. So here we will go with the full outer join because we want the complete side, the full records from the two tables, like the right side also, left side also, and the middle one also. Middle one in the sense the common elements also. So that's why we will go with the full outer join. So how to do? Select and we have this customer name कहाँ से आएगा? Let's go somewhat above. So customer name. So customer name is cust name. Cust underscore name, and that will come from the customer table. So I'm giving an alias name like c dot cust name, comma c dot city. Okay, c dot city, comma order number and order date. So order number and order date, purchase amount. So let's go into the order table now. Okay, then for the orders table, I'm giving alias name as a o. So o dot ord underscore number, comma
purchase amount and order date also we want. O dot ord underscore date comma o dot purch underscore amt. Purchase amount, these things we got. Now we want from where? From first table is customer table, customers, customer है ना, केवल customer, ठीक है, customer table, and the alias name is C. Okay, now we have to give what? We have to join the two tables using the full outer join. So we will use full outer join, full join, full outer join, full outer join. Okay, full outer join which table? Orders table, orders table O. Okay, and what is the join condition? The foreign key, that is your C dot customer ID. Customer ID तो है इसमें, देखो कस्टमर आईडी के बेस पे कर देंगे इसको. सेल्समैन की बात ही नहीं हो रही है, सेल्समैन तो थर्ड टेबल के लिए उन्होंने फॉरेन की बनाया था, तो कस्टमर आईडी इज फॉर आवर पर्पस. ओके, सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी. ओके, एंड देन वी हैव टू गिव द वेयर कंडीशन. वेयर कंडीशन में क्या आएगा? वेयर कंडीशन में क्या आएगा? हु इज नीदर इन द लिस्ट नॉर हैव ए ग्रेड. इनके पास ग्रेड नहीं हो, सो व्हाट यू हैव टू राइट? वेयर, वेयर व्हाट? ग्रेड किसके पास है? कस्टमर के पास. सी डॉट ग्रेड इज नॉट इक्वल टू लगा दो, या फिर इज नॉट लिख दो. इज नॉट नल. इज नॉट नल मतलब मैंने बताया ना, जो टेबल जिनके पास ग्रेड नहीं हो, जो एम्प्टी था ना, उनको नल कंसिडर करेंगे. सो दिस विल बी द योर क्वेरी. इज नॉट नल और इज नॉट इक्वल टू नल यू कैन मेंशन. ओके, सो लेट्स go here. I'll use the same editor. So let's check once again. Select C from cust name, C city, O dot order name, order date, purchase amount, full outer join order O, customer ID पे join कर दिया. C dot grade is not null. Okay, so if you will hit this query, you will get the result, and that result will contain all the customer who is not having grade also, and who has not placed the order also. So everything you will get from this outer join. Okay, so that was about first problem for today, where we use the full outer join. इस problem को एक बार फिर से after the session just see here. Maybe you would not be able to just focus here. Yes, anyone saying anything? Yes sir, actually ये grade, ये one condition तो हम लोगों ने छोड़ दिया. grade and कौन सा condition छोड़ दिया है? ये grade and place one या more orders. ये one नहीं है. अच्छा, order लगाओ जी. This one you are saying? Yeah. Who have a grade and placed one or more orders. Yeah. So order कैसे place करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे. एक कंडीशन तो उसी से मिल जाएंगे ना, जब आपने ये लगाया है. दिस थिंग इफ यू हैव गिवन, इफ यू हैव ज्वाइन द टू कॉलम, कस्टमर आईडी के साथ जोड़ दोगे, तभी तो वो ऑर्डर प्लेस किए हुए सारे के सारे डिटेल मिल जाएंगे. ये वाला कंडीशन से चलाओगे अगर, तो आपको वो सारे कस्टमर के डिटेल मिलेंगे, ऑर्डर डिटेल मिलेंगे, जिन्होंने क्या लगाया है, हु हैव प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर्स. ये वाली चीजें आपको मिल जाएंगी. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा जब आप उसको दोनों टेबल को जोड़ रहे हो आईडी के हिसाब से. कस्टमर आईडी इक्वल टू द कस्टमर आईडी इन द ऑर्डर टेबल. दैट मींस दे हैव प्लेस्ड द रिकॉर्ड, दे हैव प्लेस्ड द ऑर्डर. वो कस्टमर ने उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, उनके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे. ओके, so just think over the problem once again. Just read the statement once again, then you will understand for sure. Okay, now let's move to the second query. The second query says write a SQL query. Okay, SQL statement to make a report with the customer name, city, order. वही चीज में भी करना है. Amount, ठीक है, वही चीज में भी करना है. For those customer from existing list who placed one or more order. देखो पहला वाला प्रॉब्लम इसमें वाले प्रॉब्लम में लिटिल डिफरेंस है. पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था? पहले वाले प्रॉब्लम में दोनों साइड की डिटेल वो मांग रहा था, लेफ्ट और राइट दोनों के मांग रहा था. एक बार पढ़ के देखना इसमें क्या मांग रहा है. For those customers from existing list who have placed one or more orders, or which orders have been placed by the customer who is not in the list. ठीक है, वन साइड का केवल मांग रहा है. एक बार पढ़ के देखना पहले और दूसरे स्टेटमेंट को, you will understand. Okay, so just see which kind of join you can place here.
for those customers from existing list who have placed one or more orders, or orders have been placed by the customer who is not in the list. That's it. ये पहली चीज है, और which order have been placed by the customer who is not in the list, ये दूसरा वाला है। तो नॉट इन द लिस्ट में क्या मिलेगा, ऑर्डर वाला टेबल से निकालेंगे। ऑर्डर वाले टेबल से निकालने का मतलब, ऑर्डर वाले टेबल से निकालने का मतलब सी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग। सर इसमें मे बी इनर जॉइंट लगेगा ना? इनर जॉइंट से सिर्फ आपको ये मिलेगा, इनर जॉइंट से आपको सिर्फ ये मिलेगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट हु प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर, सिर्फ जब ये वाला कंडीशन इनर जॉइंट से सेटिस्फाई होगा। देखो समझने की कोशिश करो, ये मेरा क्या था, ये मेरा मान लो कस्टमर टेबल है, ये मेरा कस्टमर टेबल है, मैं इसी को ओवरलैप कर रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर्स टेबल है। अब इसको ध्यान से समझो, जो भी मेरे कस्टमर्स हैं, क्या बोल रहा हूँ, हु प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर्स। कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा तभी तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, ऑर्डर टेबल में जाएगी। दिस इज माई, लेट्स एज्यूम दिस इज माई ऑर्डर्स टेबल, द राइट साइड टेबल इज ऑर्डर्स टेबल, ठीक है, और लेफ्ट साइड टेबल इज व्हाट, द कस्टमर टेबल। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तभी तो उसकी एंट्री ऑर्डर्स टेबल में जाएगा। तो जो ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन क्या कह रहा है, हु प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर्स, ठीक है, हु प्लेस्ड वन और मोर ऑर्डर्स मतलब कॉमन वाले, बीच वाले एरिया की बात कर रहा है। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, और विच ऑर्डर हैव बीन प्लेस्ड बाय द कस्टमर हु इज नॉट इन द लिस्ट, हु इज नॉट इन द लिस्ट, उस कस्टमर का डिटेल बताओ जिन्होंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। तो कौन से हो जाएंगे, कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। सोचो एक बार, ये वाले वो कस्टमर होंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, ये वाले वो कस्टमर होंगे जिन्होंने ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। तो फाइनली यू हैव टू फिगर आउट दिस डिटेल, ये सारे के सारे डिटेल आपको निकालना है, ये निकालने को बोल रहा है, ये निकालने को बोल रहा है पूरा का पूरा। समझ गए बात को? तो कौन सा जॉइंट लगेगा, कम ऑन गाइस, लेफ्ट आउटर जॉइंट, लेफ्ट आउटर जॉइंट, करेक्ट, ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइंट लगेगा। सो हियर कस्टमर नेम, सिटी, परचेज अमाउंट, ब्ला ब्ला ब्ला, फुल आउटर जॉइंट की जगह पे क्या लग जाएगा, लेफ्ट आउटर जॉइंट। यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइंट लगा दो, लेफ्ट आउटर जॉइंट, ऑर्डर एक, ये डिटेल होगा, कंडीशन को कुछ नहीं देना है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ये आपको देगा। एक बार ना स्टेटमेंट को समझोगे ना, पढ़ोगे, मे बी एट फर्स्ट टाइम यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, तब तक समझ में ना आए। विजुअलाइज होना चाहिए, टेबल्स आपको विजुअलाइज होना चाहिए, तभी ये निकलेगा कौन सा राइट जॉइंट है, कौन सा लेफ्ट जॉइंट लगेगा, ठीक है। So that's about the second problem. Let's move to the third problem now. Okay, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो at first go you may not understand. I can think, but for sure you will, as long as you will keep on doing the practice, you will understand of your own. ठीक है, ये नई चीजें होंगी बहुत सारे लोगों के लिए, but it's easy than Java programming, I'll say. Okay. So let's move to the second problem, the other problem, third problem. Write a SQL statement to make a list for the salesman who either work for one or more customer or yet to join any of the customer. Okay, so उस salesman के डिटेल्स को निकालना है जिन्होंने या तो एक या ज्यादा कस्टमर को सर्व किया हो, या फिर that means who have worked for one or more customer or yet to join any of the customer, जिन्होंने किसी कस्टमर के लिए काम किया हो या फिर नहीं भी किया हो। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द सेल्समैन डिटेल। ओके, ऑल द सेल्समैन डिटेल फाइंड आउट करना है। ओके, द कस्टमर मे हैव प्लेस ईदर वन और मोर ऑर्डर्स ऑन और अबव अमाउंट 2000। ओके, तो ये कंडीशन भी है,
कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हो, परचेज अमाउंट 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ऑन और अबव 1000 2000, एंड मस्ट हैव ए ग्रेड, और उसके पास ग्रेड भी होना चाहिए, उस कस्टमर का ग्रेड भी होना चाहिए, और ही मे नॉट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर टू द एसोसिएट सप्लायर, ओके, या फिर किसी को ऑर्डर ना भी प्लेस किया हो उसका भी डिटेल निकालना है। इफ यू विल लुक क्लोजली टू द टेबल स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट टेबल इज कस्टमर टेबल, सेल्समैन टेबल, जिससे कि क्या मिलेगा हमको, ये वाला, ये जो कंडीशन बता रहा है ना, फॉर वन list of salesmen who had either work for one or more customer or yet to join any customer, ये वाला मिल जाएगा इन दोनों टेबल से, कस्टमर और सेल्समैन टेबल से, जब इसको ज्वाइन करोगे तो। सो बेसिकली कस्टमर और सेल्समैन टेबल को जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको कौन सा ज्वाइन लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे इफ यू विल सी, सेल्समैन में क्या बोल रहा है, जस्ट थिंक ओवर द प्रीवियस प्रॉब्लम, उसमें क्या था, सारे के सारे कस्टमर्स के डिटेल निकालना थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हो और जिन्होंने ऑर्डर नहीं भी प्लेस किया हो। यहाँ पे ऑर्डर के जगह पे सेल्समैन दिया हुआ है, जिन्होंने जो सेल्समैन कस्टमर के लिए काम कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा हो, येट टू ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन ना किया हो उनका भी डिटेल चाहिए, ठीक है। सो ये उससे मिल जाएगा, कस्टमर और सेल्समैन टेबल को ज्वाइन करोगे तो कौन सा ज्वाइन लगाओगे, ऑब्वियसली अगेन विच वन, इफ यू आर सी इट्स अपॉन यू विच काइंड ऑफ ज्वाइन यू वांट टू प्लेस। तो अगर आपने लेफ्ट में कस्टमर को रखा है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाओगे, राइट में कस्टमर को रखा है तो राइट आउटर ज्वाइन लगाओगे, सॉरी नॉट कस्टमर, सेल्समैन को, क्योंकि आपको सेल्समैन की डिटेल चाहिए। तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, कस्टमर और सेल्समैन का जो होगा, कस्टमर और सेल्समैन का जो मान लो कि ये तुम्हारा जो राइट साइड में मैंने सेल्समैन को रखा है और लेफ्ट साइड में मैंने किसको रखा है, कस्टमर को रखा है, लेफ्ट साइड में किसको रखा है, कस्टमर को रखा है, और राइट साइड में किसको रखा है, सेल्समैन को रखा है। तो एज पर द प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमको सारे के सारे सेल्समैन की डिटेल चाहिए, who one or more customer who either work for one or more customer or yet to join any of the customer, जिन्होंने एक या एक से अधिक कस्टमर के लिए काम किया हो या फिर काम अभी करना स्टार्ट नहीं किया हो, मतलब ना किया हो काम किसी भी कस्टमर के लिए, उनके भी डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ये वाला किसको मिल जाएगा, जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो भी सेल्समैन कस्टमर के लिए काम करना स्टार्ट किया है, दिस मिडिल पार्ट विल शो, देन वो भी सेल्समैन की डिटेल चाहिए जिन्होंने किसी कस्टमर के लिए काम नहीं किया है। देन इन दैट केस कौन सा आपको चाहिए होगा, ये वाला भी चाहिए होगा, ये वाला पार्ट भी चाहिए होगा, ओके। सो इन दिस केस आई हैव एज्यूम माय लेफ्ट पार्ट एट द फॉर द कस्टमर और राइट पार्ट मैंने सेल्समैन के लिए एज्यूम किया है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, आप पहले सेल्समैन को ले लो, उसमें कस्टमर को ले लो, उस केस में आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन लग जाएगा, इस केस में राइट आउटर ज्वाइन लग जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये और इसके लिए मैंने किसको माना है, सेल्समैन को माना है, और इसको मैंने क्या माना है, कस्टमर को माना है। तो जो भी आप क्वेरी लिखोगे, तो पहले अगर कस्टमर से सेलेक्ट कर रहे हो तो दैट विल कम एट द लेफ्ट, पहले आप सेल्समैन को कंसीडर कर रहे हो तो दैट विल कम एट द लेफ्ट, जो भी पहले लिखोगे तो वो लेफ्ट वाला आएगा, उसके बाद वाला जो लिखोगे वो राइट साइड में आएगा। सो एज पर दिस डायग्राम यू विल हैव टू राइट द राइट आउटर ज्वाइन फॉर द सेल्समैन एंड कस्टमर टेबल, सेल्समैन कस्टमर में राइट ज्वाइन लग जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, द कस्टमर हु हैव प्लेस्ड ईदर वन और मोर ऑर्डर्स ऑन और अबव ऑर्डर अमाउंट 2000 एंड मस्ट हैव अ ग्रेड। तो यहाँ पे आओगे तो ऑर्डर टेबल पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उन कस्टमर डिटेल निकालना है जिन्होंने 2000 से ज्यादा के ऑर्डर प्लेस किए हो, ठीक है। तो सेल्समैन और सॉरी कस्टमर और ऑर्डर में अब लगेगा एक ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सी द कस्टमर में हैव प्लेस ईदर वन और मोर ऑर्डर्स ऑन और above ऑर्डर अमाउंट 2000 एंड मस्ट हैव अ ग्रेड, ठीक है। सो अगर पहले दोनों टेबल को कस्टमर और सेल्समैन को आपने जोड़ दिया राइट आउटर ज्वाइन से, अब कस्टमर और ऑर्डर को जोड़ना पड़ेगा, कस्टमर और ऑर्डर को जोड़ना पड़ेगा। ये वाला मानो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला मान लो कि ऑर्डर टेबल है, सो ऑर्डर टेबल में क्या लगाना पड़ेगा आपको, ये वाला ऑर्डर टेबल माना है मैंने, और लेफ्ट साइड पे मैंने कस्टमर को रखा है और राइट साइड पे मैंने ऑर्डर को रखा है, ये वाला टेबल ऑर्डर वाला टेबल है। ये फर्स्ट गो में सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डर वाला टेबल है। सो अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा हमको क्या निकालना है, हमको द कस्टमर में हैव प्लेस ईदर वन और मोर ऑर्डर्स ऑन और अबव द ऑर्डर अमाउंट इतना मस्ट हैव अ ग्रेड, ओके। जिन्होंने क्या प्लेस किया हो, ऑर्डर प्लेस किया हो। ऑर्डर प्लेस करने की बात करेंगे तो कौन सा निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकालेंगे, ओके, ये वाला पार्ट निकालेंगे। नाउ
नाउ उसमें क्या कह रहा है, कस्टमर मे हैव प्लेस्ड ईदर वन और मोर ऑर्डर्स ऑन और अबव 1000 एंड मस्ट हैव ए ग्रेड, और ही मे नॉट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स, ये भी कह रहा है, और ही मे नॉट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर। उस केस में क्या लगाएंगे, ये वाला डिटेल पूछ रहा है मुझसे, कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा उसका भी डिटेल चाहिए, तो ये वाला पार्ट निकल लगा लेंगे फिर। ओके, सो बेसिकली फॉर द कस्टमर एंड ऑर्डर टेबल यू विल प्लेस left outer join, for customer and salesman you will place right outer join, provided you have given customer table at the right side and salesman table at the customer table at the left side, salesman table at the right side and order table also at the right side. So basically आपको इस तरह से query लिखनी पड़ेगी। लिखो, I'll give you 1 minute, already I have explained you how it will happen. Okay, so यहाँ पे कुछ they are not saying any specific column name, so मैं स्टार कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार, सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे फ्रॉम कस्टमर्स टेबल सी। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की जगह पे क्या लग जाएगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात की नहीं, यहाँ पे सेल्समैन है उसमें क्या लगेगा, राइट आउटर ज्वाइन लग जाएगा, क्योंकि हमको सेल्समैन सारे के सारे सेल्समैन की डिटेल चाहिए, तो इसमें क्या लग जाएगा, राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन ऑन, राइट आउटर ज्वाइन किस पे लगेगा, राइट आउटर ज्वाइन सेल्समैन टेबल पे लगेगा, सेल्समैन टेबल पे लगेगा। ठीक है, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी के जगह पे क्या है इनका, सेल्समैन आईडी हो जाएगा, सॉरी सी डॉट सेल्समैन आईडी। ठीक है, और सेल्समैन का मैंने यस एज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस डॉट सेल्समैन आईडी। तो ये आपको क्या दे देगा, ये क्वेरी आपको दे देगा पहली वाली कंडीशन, सेल्समैन हु ईदर वर्क फॉर वन और मोर कस्टमर्स और येट टू ज्वाइन एनी कस्टमर, तो ये राइट आउटर ज्वाइन लगाओगे तो ये आपको उसका डिटेल दे देगा। नाउ इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम इट इज सेइंग the customer may have placed either one or more orders on or above 2000 amount and must have a grade, or he may not have placed any order. So जिन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हो, नो डाउट कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन वी कैन पुट इन द वेयर क्लॉज, but we want the complete customer details, who has put the order and who has not put any order also. ठीक है, so for that we will just have what, left outer join, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे ना, देखो कस्टमर ये वाला डिटेल चाहिए हमको, ऊपर वाला डिटेल चाहिए, ऊपर वाला मतलब कस्टमर टेबल ऊपर में है, दैट मींस एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेल्समैन आईडी हो गया, फिर जो आउटपुट मिलेगा उस पर हम क्या करेंगे, आउटपुट मिलेगा उस पर क्या कर देंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा देंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन किस पे, नीचे वाला टेबल मतलब ऑर्डर टेबल पे, ऑर्डर्स टेबल पे। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल का ओ मैंने मान लिया। ठीक है, किस पे जोड़ेंगे इसको, ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी पे दोनों जुड़े हुए हैं, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी इक्वल टू एस डॉट सॉरी ओ डॉट कस्टमर आईडी, ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वेयर क्लॉज भी देना पड़ेगा, वेयर क्लॉज क्यों देना पड़ेगा, कह रहा है कि ऑर्डर अमाउंट 2000 से ऊपर होना चाहिए, 2000 या 2000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वी कैन राइट वेयर सी डॉट सी मतलब परचेज अमाउंट, किस में कौन से टेबल में दिया हुआ है, परचेज अमाउंट इसी में दिया हुआ है ना, ओ डॉट, सी डॉट नहीं ओ डॉट, ये बार बार ये। ठीक है, वेयर ओ डॉट व्हाट, परचेज अमाउंट, PURCH, पर्च अमाउंट करके कुछ लिखा होगा ना शायद, टेबल का नाम क्या है, पर्च अमाउंट। ओके, वेयर ओ डॉट
फर्स्ट अमाउंट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, 2000 या 2000 से ऊपर होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड मस्ट हैव अ ग्रेड, मस्ट हैव अ ग्रेड, क्या बोल रहा है, मस्ट हैव अ ग्रेड, तो ग्रेड होना चाहिए। एंड व्हाट मस्ट हैव अ ग्रेड मतलब किसके पास, grade not equal to null. हाँ सी डॉट ग्रेड मतलब कस्टमर का ही ग्रेड है ना, सी डॉट ग्रेस मस्ट हैव अ ग्रेड का मतलब क्या हो गया, क्या लगाना चाहिए मुझे बताओ, इज नॉट नल लगा सकता हूँ, नॉट नल लगा सकता हूँ ना, यही तो मतलब हो गया, नॉट नल लगा दो, इज नॉट नल। ग्रेड होना चाहिए मतलब क्या, इज नॉट नल, सोचो एक बार, ठीक है। So basically I am putting a star, you can put some particular column also, that's not an issue. Select star from customer C, right outer join, so again I am explaining you, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको वो सारे सेल्समैन चाहिए जिन्होंने किसी कस्टमर के लिए काम किया है या फिर नहीं किया, दोनों तरह के कस्टमर, दोनों तरह के सेल्समैन की डिटेल चाहिए हमको, इसलिए हमने राइट आउटर ज्वाइन लगा दिया है, क्योंकि हमने सेल्समैन को राइट साइड पे प्लेस किया है। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया मैंने ऑर्डर टेबल पे, क्यों लगाया, क्योंकि हमें वो सारे कस्टमर चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हो या फिर ना प्लेस किया हो, हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर एंड नॉट प्लेस्ड ऑर्डर आल्सो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु इज इन द लिस्ट एंड नॉट इन द लिस्ट। मैंने बोल रहा है ऑन वन और अबव ऑर्डर और ही मे नॉट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर, सो दोनों तरह के डिटेल चाहिए। दिस विल बी योर क्वेरी, लेट्स एग्जीक्यूट इट। okay, so you have got the result. So basically it is for it is fetching all the column, whatever columns you want you can just put it instead of star. Okay, that's about the third problem. Okay, एक बार घर पे इसको प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीजें हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉब्लम, द फोर्थ क्वेरी फॉर टुडे, ओनली 4, कितने लोगों ने ज्वाइन किया अभी, 4 people only there, see. Anyways, let's go to the fourth problem. Fourth problem में क्या बोल रहा है, write a SQL statement to make a list in ascending order, to make a list in ascending order for the salesman who either work for one or more customer or yet join any yet to हो जाएगा ना, yet to join under any of the customer, ठीक है। so थर्ड वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, थर्ड वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, देखो, write a SQL statement to make a list in ascending order for the salesman who works either for one or more customer, either for one or more customer, ठीक है, और yet to join under any of the customer, और yet to join under any of the customer, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ही एज्यूम करो, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम को विजुअलाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, कस्टमर था, सेल्समैन था, सो हमें सेल्समैन का ही डिटेल चाहिए जिन्होंने कस्टमर को सर्व किया हो, दैट मींस हु हैव वर्कड फॉर सम कस्टमर और हु हैव नॉट वर्कड फॉर एनी कस्टमर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, और येट टू ज्वाइन अंडर एनी कस्टमर। तो यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम है, पहला थर्ड वाला ही प्रॉब्लम है, बस उसका छोटा रूप है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेबल है, कहने का मतलब वही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे कि हमने लगाया था ना राइट आउटर ज्वाइन, तो यही वाला ज्वाइन लग जाएगा, सिर्फ इतना ही उसका क्वेरी हो जाएगा, सिर्फ इतना इसकी क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिस इज द क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक बार सोचो, कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे, आई विल गिव यू 2 minutes टू थिंक ओवर इट। Write a SQL statement to make a list in ascending order. Ascending order already you can do using the what, order by clause लगा के कर सकते हो, ऑर्डर बाई क्लॉज लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर बाई डिफॉल्ट हो जाता है। ऑर्डर बाई किस कॉलम पे लगाओगे, सेल्समैन के आईडी पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे ऑन लगाने के बाद ऑर्डर बाई लगा दो ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। नेम पे भी लगा सकते हैं ना सर, सेल्समैन डॉट नेम, हाँ उसके नाम से सॉर्ट करना चाहते हो नाम से कर लो, आईडी से करना चाहते हो आईडी से कर लो, तुम्हारी मर्जी। एस डॉट नेम पे कर लो, चलो ज्यादा सही है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द फोर्थ क्वेरी। Again I am saying these queries are very easy,
So don't be panic if you are not understanding. The only thing which you will need is just reading the query, reading the problem statement twice, thrice, and just visualize the table. टेबल को visualize होना चाहिए. क्वेरी लिखने का मतलब ये होता है कि तुम्हें टेबल तुम्हारे आंखों के सामने दिखना चाहिए कि कौन से टेबल में क्या क्या होगा और कैसे मैं ज्वाइन करूं. नहीं देख पा रहे हो तो डायग्राम बनाओ एक बार, उससे समझने की कोशिश करो. Okay, so let's move to the further problems. Fourth, fifth और सिक्स भी होगा ना, सेवन भी है क्या? सेवन भी है. चलो, फिफ्थ क्या कहता है? राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू मेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखो. Between salesman and customer, that is each salesman will appear for all customers and vice versa for the salesman who belong to a city, for a salesman who belong to a city. ठीक है. अब इसको समझने से पहले एक चीज समझो कि क्रॉस ज्वाइन क्या होता है. ओके, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है. सो मैंने बंद क्यों कर दिया इसको. Okay, so basically here if you will see कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. सो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने दो मैट्रिक्सेस पढ़े होंगे. दो मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस, सो इफ यू वांट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे. मतलब क्या हुआ, समझो. यहाँ पे वही चीज है जो मैट्रिक्स में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. ठीक है, दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं. हियर मैट्रिक्स इज, लेट्स अज्यूम द टू टेबल्स. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रोज हैं. लेट्स से आई हैव वन रो, लेट्स से वन रो फॉर नेम, अदर रो फॉर एज, एंड थर्ड रो फॉर सैलरी. आई एम अज्यूमिंग दिस इज एन एम्प्लॉय टेबल, एंड आई हैव अनदर टेबल फॉर द प्रोजेक्ट टेबल. ओके, सो प्रोजेक्ट में मान लो मैंने मान लिया कि प्रोजेक्ट नेम. ओके, प्रोजेक्ट नेम, देन आई हैव टेन्योर, कितने टाइम का प्रोजेक्ट है. देन आई हैव लेट्स से द नंबर ऑफ और द टीम साइज. ठीक है, सो दिस इज माय टू टेबल्स. ओके, द फर्स्ट टेबल इज व्हाट, द एम्प्लॉय टेबल. ओके, एम्प्लॉय टेबल होगा. सिलेक्ट क्यों नहीं होता है पहली बार में, सॉरी. एम्प्लॉय टेबल, एंड ये टेबल जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट टेबल है. ठीक है, सो अगर आपको ये बोले करने के लिए, ये बोले मतलब क्या बोले, कहाँ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू टेबल्स, दैट इज सेल्समैन विल अपीयर ऑल द कस्टमर वाइस वर्सा. ओके, सो ये बोलने का क्या मतलब हो गया कि जितने भी रो एक टेबल में है उन सबकी मैपिंग दूसरे टेबल से करना. दूसरे टेबल से करना मतलब दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर name you want to have multiplied with project name also, tenure also, and this one also, team size also. So हर एक रो का दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लिकेशन, हर एक रो का दूसरे टेबल के साथ, हर एक रो के साथ मल्टीप्लिकेशन. Similarly for age also, for all the columns, all the rows which is there in the second table, you have to do the multiply. मतलब सारे के कॉम्बिनेशन चाहिए. बेसिकली कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है. That is each salesman will appear for all customer and vice versa, मतलब all customer will appear for each salesman. ठीक है, so कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. It is same like your मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इन योर मैथमेटिक्स, वही वाली चीज है. ठीक है, so here for this kind of records, for this kind of relationship between two tables, we call it what, we call it as a cross join. क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं उसको. ठीक है, क्रॉस ज्वाइन. ठीक है, so here as per this particular SQL query statement,
what is asking, write a SQL statement to make a Cartesian product between salesman and customer, that is each salesman will appear for all customers and vice versa, मतलब all customer will appear for each salesman. ठीक है, कुछ इस तरह से है कि एक कस्टमर के लिए सारे सेल्समैन काम कर सकते हैं और एक सेल्समैन के लिए सारे कस्टमर भी हो सकते हैं, मतलब वन टू क्या बोलते हैं, एंड टू एंड रिलेशनशिप, एंड टू एंड रिलेशनशिप. ठीक है, सो इसमें कैसे होगा, फॉर दिस यू विल हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड द क्रॉस ज्वाइन. क्रॉस ज्वाइन किस पे कर देंगे, किस पे कर देंगे, सेल्समैन आईडी पे कर देंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. द ओनली कंडीशन इट सेज इज सेल्समैन हु बिलोंग टू अ सिटी. सिर्फ ये कंडीशन इसमें दिया हुआ है, जिनके पास सिटी हो, ऐसा नहीं हो कि सिटी ना हो, सेल्समैन के पास सिटी होना चाहिए. For this particular table, all the salesman has city, but suppose some particular salesman has been there and whose city is not mentioned, the city is null, so you have to ignore that particular row. ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन आपको लिखना है. ठीक है, ट्राई डूइंग. And homework for you will be one question I am giving you, what kind of join is cross join, is it a outer join or a inner join, that you have to figure it out. क्योंकि हमने बस ये पढ़ा था कि दो तरह के ज्वाइन होते हैं, आउटर और इनर. आउटर में लेफ्ट और राइट और इनर में सिर्फ इनर ज्वाइन. Then find out what kind of join is cross join, whether it is outer join, inner join or some other kind of join. ठीक है, so let's see here. It will be also be a simple query. Select star from where, from salesman. सेल्समैन डिटेल चाहिए हमें, सेल्समैन. ओके, इसका एलाइस नेम यस रख लेते हैं. एज आई टोल्ड यू विल यूज क्रॉस जॉइन, समथिंग कॉल्ड अ क्रॉस जॉइन. क्रॉस जॉइन किस टेबल पे, कस्टमर टेबल पे, कस्टमर सी, और बस कंडीशन लगा दो. ओके, सो बेसिकली इन द क्रॉस जॉइन, इफ यू विल सी यहाँ पे जो मैपिंग है, हर एक रो का सारे रो के साथ मैपिंग हो रहा है. इन ईच रो ऑफ ईच टेबल हैज मैपिंग विद द अदर रोज इन द अदर टेबल. सो हियर यू नीड नॉट टू गिव एनी ऑन कंडीशन. ऑन कंडीशन दोगे ना, तो ऑन कंडीशन में मतलब क्या होगा, जो सेम है, सेम मतलब जहाँ जिस सेल्समैन आईडी के लिए जो कस्टमर आईडी प्रेजेंट है, सिर्फ 1-to-1 मैपिंग हो पाएगा, सिर्फ इसकी मैपिंग होगी. 5001 का 5001 के साथ मैपिंग होगी, इन दोनों के साथ मैपिंग होगी. बट आई वांट कि 5000 का सबके साथ मैपिंग हो जाए, इसी को क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं. तो उस केस में आपको ऑन नहीं लगाना होता है. सो इन क्रॉस ज्वाइन यू डोंट गिव द ज्वाइनिंग कंडीशन. ओके, यू नीड नॉट टू गिव द ज्वाइनिंग कंडीशन. जैसे आउटर ज्वाइन में लगाते थे ना कि ज्वाइन ऑन द फॉरेन की, दैट मींस ऑन लगाते थे और दो टेबल का फॉरेन की को ऐड करते थे, इक्वल करते थे. बट हियर यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द क्रॉस ज्वाइन. क्रॉस ज्वाइन का मतलब यही होता है कि एक रो का सारे रो के साथ मैपिंग, रिलेशनशिप. ठीक है, देन यू हैव टू गिव जस्ट द वेयर कंडीशन. वेयर सेल्समैन बिलोंग टू अ सिटी, मतलब सेल्समैन बिलोंग टू अ सिटी मतलब एस का जो सिटी होना चाहिए, एस डॉट सिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, इज नॉट नल. बस इतना छोटा सा क्वेरी बनेगा. ठीक है, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने नहीं लिखा ना, फ्रॉम सेल्समैन एक क्रॉस ज्वाइन कस्टमर के साथ कर दिया, वेयर एस डॉट सिटी इज नॉट नल. इसको करोगे तो आ जाएगा आपके पास सारे के सारे कॉलम्स. ओके, सो इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन. एप्लीकेशन पढ़ना, क्रॉस ज्वाइन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, किस तरह के सिनेरियोज में हम क्रॉस ज्वाइन लगाते हैं. सो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू वन सिनेरियो. वन सिनेरियो इज one salesman will appear for all customers and all customer will appear for each salesman. So हर एक salesman के लिए सारे customer और हर एक customer के लिए सारे salesman. Okay, so in such a scenario you are supposed to use the Cartesian product, that means your cross join. So here we just ended with the query number 5 and for today we have left with 2 more queries.
ठीक है, सो इसको देखो, आई थिंक दिस विल आल्सो बी फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली। ओके, सो ये क्या कहता है, राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू मेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेल्समैन एंड कस्टमर, दैट इज ईच सेल्समैन विल अपीयर फॉर ऑल कस्टमर एंड वाइस वर्सा, सेम एज द लास्ट वन। फॉर those salesmen who belong to a city and customer who must have a grade। तो यहाँ पे बस लास्ट वाले ही क्वेरी में क्या कर रहा है, थोड़ा सा अलग कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या कह रहा है, who belong to a city and the customer who must have a grade। तो ये दो कंडीशन है, तो करो फटाफट। बिलोंग टू अ सिटी तो लास्ट में भी था, ओनली कस्टमर हु मस्ट हैव अ ग्रेड है। हाँ, बिलोंग टू अ सिटी लास्ट वाले में भी था। तो सब ठीक है, बस लास्ट वाले में भी। एंड के साथ वो लगा देंगे ना। हाँ, बिलोंग टू सिटी लास्ट वाले में भी था। वेयर कंडीशन उसमें भी हमने लगाया था ना, यहाँ पे देखो। उसी में वेयर में ही सर यहाँ एंड लगाते हैं वो कर रहे हैं एंड जो में क्या पहले लगाएंगे, करेंगे हम। एंड ग्रेड इज नॉट इज नल, इज या नॉट नल। करेक्ट। सो एंड ग्रेड इज नॉट नल, ग्रेड मतलब सी का ग्रेड जो ग्रेड सी है डॉट, हाँ। इज नॉट नल। ओके, सो बस इतना ही होगा इसका। इट वाज सिंपल क्वेरी गाइस। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेस प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, सो इट इज आल्सो फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ज्यादा ही दे दिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस अबाउट, राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू मेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेल्समैन एंड कस्टमर, दैट इज सेल्समैन अपीयर फ्रॉम ब्ला 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 for those who must belong to a city। ठीक है, who must belong to a city which is not the same as his customer। यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, उन सेल्समैन के डिटेल को निकालना है जो कि कस्टमर के सिटी में ना रहते हो। कस्टमर अगर नोएडा में रहता है तो सेल्समैन दिल्ली में रहना चाहिए, सेम सिटी के नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड द कस्टमर शुड हैव देयर ओन ग्रेड, एंड द कस्टमर शुड हैव देयर ओन ग्रेड। तो दो कंडीशन है, फटाफट करो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने किया था लास्ट वाले क्वेरी में, मस्ट बिलोंग टू ए सिटी, यहाँ तक तो किया था, वेयर कंडीशन लगाया था। बाकी अभी आप लोगों को वेयर कंडीशन इसके लिए लगाना है। इसके लिए वेयर कंडीशन लगाओ, which is not the same as his customer and the customer should have their own grade। have their own grade मतलब customer should have grade। ऐसा नहीं कि ग्रेड उसका नल हो जाए, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, I'll give you 2 minutes to think over this। the it's the same as the last to last query। last to last means the fifth one, sorry। the only difference will be in the where clause। in the where clause you will put condition for these two conditions, which is not in the same as customer and the customer should have grade। सेल्समैन का सिटी कस्टमर की सिटी के जैसा नहीं होना चाहिए और कस्टमर के पास ग्रेड होना चाहिए, दैट्स इट। वेयर एस डॉट सिटी इज नॉट नल, आपका लास्ट वाला है कि ये?
ठीक है, यहाँ तक तो क्वेरी सेम ही होगा। s डॉट सिटी इज नॉट नल। सेकंड कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट द सेम एज इज कस्टमर। कस्टमर के जैसा इसकी सिटी सेम नहीं होना चाहिए सेल्समैन का सिटी। क्या लगा सकते हैं, लगा दो इसमें एंड कंडीशन, and s dot city not equal हाँ, to s not dot equal to, c dot city. हाँ करेक्ट। और एक और बोल रहा है द कस्टमर शुड हैव अ ग्रेड, क्या लगाऊं? इसके बाद and And grade not equal to null is not null. c dot grade is not null ना, Yes, sir. करेक्ट। सो ये क्वेरी बनेगी इसकी बस। See, what I have seen, people used to make they get confused with these things because they don't read the query, the problem statement carefully. So I'll suggest you just read the queries twice, thrice, ठीक है, then only you will be able to write the query. The problem statement basically you will have to read it many times. Select star from, ठीक है। सिटी नॉट इक्वल टू ये जावा ऑपरेटर होता है, इसको मत यूज करो। लेस देन ग्रेटर देन यूज करो, ये नॉट इक्वल के बराबर ही होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस क्वेरी। आई एम गोइंग टू शेयर यू दिस लिंक। Okay, so this link you will find so many queries. Okay, 29-30 queries are there. इसमें सब तरह के ज्वाइन के queries आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करो यहाँ से। This is very useful. Okay, so I am going to share you this link. So start practicing from this particular portal. Okay, this will help you out in practicing the join queries for the SQL. So guys, today's session was to be very short, and I'm done from my end. And from Monday you will have the Spring Boot session based upon what? Based upon these queries and plus Java program. So basically we will use the Hibernate and JPA to what? To just fetch the records from the database directly. Okay. And the sessions are going to be very interesting. So that's it from my end. I'm going to share the I'm going to stop the recording and end the session now.